اس وقت سلما کا بھی ساختہ رد عمل یہ ظاہر کر رہا تھا کہ چھوٹی موٹی جھڑپوں کے باوجود وہ دل و جان سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ جہانگیر کے اغوا کا واقعہ بہت مختصر تھا۔ وہ ہتھیاروں کے زور پر زبردستی اندر آئے، سلما کو بھی بس کیا اور جہانگیر کو لے گئے۔ سلما کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں اس کے شوہر کو کس طرح لے گئے تھے۔ اصل واردات کے وقت وہ باتھ روم میں بے بسی کی حالت میں پڑی اپنی رہائی کی کوششیں کر رہی تھی۔ روبرو گفتگو میں اسے صرف ایک کام کی بات معلوم ہوئی کہ دونوں افراد کسی قسم کے میک اپ میں نہیں تھے۔ سلما نے انہیں اچھی طرح پہچان لیا تھا اور وہ دوبارہ سامنا ہونے کی صورت میں آسانی سے انہیں شناخت کر سکتی تھی۔ ان دونوں کے چہرے عام آدمیوں جیسے تھے، دونوں توانا اور جاندار نظر آ رہے تھے اور ریوالوروں سے مسلح تھے۔ انہوں نے آتے ہی اپنے کام سے کام رکھا تھا۔ سلما خوبرو اور متناسب بدن کی مالک تھی، لیکن ان دونوں میں سے کسی نے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی۔ انتہائی سپاٹ انداز میں اسے بے بس کر کے بے رحمی سے باتھ روم میں بند کر دیا۔ خاصی تفصیلی جرا کے بعد وہ یہ بتا سکے کہ ان میں سے ایک کے داہنے چبڑے پر کان سے لے کر دہنے تک کسی پرانے زخم کا نشان تھا، جس کی چکنی جلد بالوں سے یکسر محروم تھی۔ وہ ایک بڑی اور واضح نشانی تھی جس کے سارے مجرموں کا کھوج لگایا جا سکتا تھا۔ باہمی مشورے کے بعد اول خان نے علاقے کی پولیس کو اس واقعے سے باخبر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ ہونا یا نہ ہونا بعد کی بات تھی، ہم تینوں کی رائے میں اس واقعے کا ریکارڈ پر آنا ضروری تھا۔ اول خان نے فون پر علاقے کے تھانے سے رابطہ کیا تو تھانے دار موجود نہیں تھا۔ اول خان نے اپنے مختصر تعارف کے بعد سب انسپیکٹر کو واقعے سے آگاہ کر دیا۔ اول خان اور ایس ٹی ایف کے تذکرے کی وجہ سے مشکل مرحلہ بہت آسان ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں تھانے دار اپنے 2 ماتحتوں کے ساتھ وہاں موجود ہوا۔ تھانے دار نے کسی جرا کے بغیر وہ واقعہ سنا، سلما سے چند سوالات کیے اور پھر اس کا مختصر بیان قلم بند کر کے واپس چلا گیا۔ اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اول خان نے رسمی کارروائی پوری کرنے کی غرض سے تھانے کو واقعے سے آگاہ کیا تھا، ورنہ ایس ٹی ایف اس واردات کا کھوج لگانے کی پوری طرح اہل تھی۔ اس کی نگاہ میں 2 نکات اہم تھے۔ اول یہ کہ مجرم عمارت سے پہلے احاطے میں گھسنے میں کیسے کامیاب ہوئے، جبکہ احاطے کا راستہ ہر وقت نگرانی میں رہتا تھا۔ دوم یہ کہ وہ عمارت میں سے ایک شخص کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے میں کیسے کامیاب ہوئے۔ تیسرا نکتہ اسے میں نے سوچایا۔ سلما کی کہانی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں آنے والے پیشہ ور مجرم تھے اور پولیس کے محکمے میں ان کا ریکارڈ ہونا چاہیے تھا۔ اس ریکارڈ کی چھان بین کر کے زخمی چہرے والے مجرم کی نشاندہی ہو سکتی تھی۔ اگر وہ سامنے آ جاتا تو اس کیس کی باقی کڑیاں بھی آسانی سے یکجا کی جا سکتی تھی۔ تھانے دار نے جاتے جاتے بہت خلوص کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی ساری توجہ اس واقعے پر مرکوز کر کے اول خان کو جلد از جلد اپنی تفتیش کے نتائج سے آگاہ کرے گا۔ جہانگیر کے اغوا ہو جانے کے بعد سلما اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ بہت پریشان اور خوفزدہ تھی۔ جب غزالہ نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش کی تو وہ بلا پس و پیش ہمارے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئی۔ ہماری واپسی پر پوری عمارت کا ماحول پتلا ہوا تھا۔ جہانگیر کے اغوا کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل چکی تھی۔ پولیس والوں نے اپنے روایتی انداز میں گراؤنڈ فلور پر واقع منتظم کے کمرے میں اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا، جہاں پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری تھا۔ پولیس والوں کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ہمیں اس میں دخل انداز ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کو اطلاع دے کر ہم نے اپنی قانونی ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ اگر وہ جہانگیر کی بازیابی کے سلسلے میں کوئی راہ تلاش کر لیتے تو ہمارا کام آسان ہو سکتا تھا، ورنہ یہ سامنے کی بات تھی کہ ہمیں جو کچھ کرنا تھا اپنے طور پر کرنا تھا۔ واپسی سے پہلے اول خان نے اپنے دونوں آدمیوں کو کچھ ہدایات دیں، پھر ہم وہاں سے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ سلما اپنے شوہر کے اغوا کی عینی شاہد تھی۔ خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس پر ایسی شدید رکت طاری تھی کہ وہ بات بات پر روئے جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ویرا نے روتی ہوئی عورتوں کے بارے میں کوئی فرضی بات نہیں کہی تھی۔ روتی ہوئی عورت واقعی اپنی ساری کشش کھو بیٹھتی ہے۔ ہم گھر پہنچے تو ویرا نے بڑی ہمدردی کے ساتھ سلما کا استقبال کیا، لیکن میں اس کے ابتدائی تاثر سے بھانپ چکا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ سلما کی آمد سے خوش نہیں تھی۔ اس نے ہمارے ساتھ جانے سے انکار کر کے جس صورتحال سے بچنے کی کوشش کی تھی وہ آخرکار اس کے سر پر مسلط ہو گئی تھی۔ تمہاری دانست میں یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ سلما کے کچھ پرسکون ہو جانے کے بعد ویرا نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ میرے لیے وہ ناگہانی آفت تھی جو اچانک نازل ہو گئی۔ مجھے اس کے سر پیر کا کوئی علم نہیں ہے۔ سلما نے بے چارگی سے جواب دیا۔ یہ ڈینی سے ان کی دوستی کا شاخسانہ ہو سکتا ہے، ان کی کسی سے دوستی یا دشمنی نہیں تھی۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ ویرا کا رخ میری طرف ہو گیا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے سلما سے نظریں بچا کر ویرا کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اس وقت ایسے سوالات سے سلما کو پریشان نہ کرو، وہ ایک بھیانک تجربے سے دو چار ہوئی ہے۔ اس وقت اسے آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ میں بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہی ہوں، سلما نے گہرا سانس لے کر کہا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میں کئی آدمیوں سے لڑ کر آئی ہوں۔
इन बदमाशों ने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ भी की होगी। वीरा हर वक्त घात में लगी रहती थी। सलमा की बात से उसे एक नया मौजू मिल गया। नहीं, सलमा के जवाब ने वीरा के तजस्सुस पर ओस डाल दी। वो कह रही थी इस वक्त वो दोनों गालिब थे, जो चाहते कर सकते थे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उन्होंने मुझे बेबस करने के बावजूद मेरे साथ कोई घटिया हरकत नहीं की। इस बात से साबित हो रहा है कि वो पुराने और आदि मुजरिम थे। अनाड़ी किसी घर में घुसते हैं तो औरतों को अपनी तहवील में पाकर आप से बाहर हो जाते हैं। अपना असल मकसद पूरा करने के साथ साथ इन औरतों को सताना और इनकी तजलील करना अपना हक समझते हैं। अव्वल खान ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए अपना मुशाहिदा बयान किया। ये बातें बाद में होती रहेंगी, मैंने हाथ उठाकर ऊंची आवाज में कहा। फिर गजाला से मुखातिब हो गया। चौथा बेडरूम खाली है, जरूरत की चीजें मुहैया करके सलमा को वहां पहुंचा दो। हम देखते हैं कि जहांगीर के बाजियाबी के लिए क्या किया जा सकता है। वो दोनों अपनी शक्लों से सफाक और खूनी लग रहे थे। सलमा अपनी जगह से उठते हुए बोली, इनका सुराग लगाओ। मुझे होल आ रहे हैं कि इन तक पहुंचने में देर हुई तो कहीं वो मार मार कर उनको हलाक न करते। तुम बेफिक्र रहो। मैंने बढ़कर उसके चाने पर हल्की सी थपकी दी। इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा मुकद्दम काम यही है। मैंने अपने दोनों आदमियों से कह दिया है कि वो पुलिस वालों के साथ मिलकर काम करें ताकि हम जल्द अज जल्द जहांगीर तक पहुंच सकें। अव्वल खान ने उसे यकीन दहानी कराई। गजाला उसे लेकर खाली बेडरूम की तरफ चलती। मुझे इस बेचारी से बहुत हमदर्दी है। उसके चले जाने के बाद वीरा नीची आवाज में बोली, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे रोनी सूरतें अच्छी नहीं लगती। खुदा का शुक्र अदा करो कि इस घर में 4 बेडरूम हैं। चौथा कमरा खाली ना होता तो सारी मेहमानदारी तुम्हारे सर आती। सुल्तान शाह ने उसकी बात काट कर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? वीरा ने तेजी से पूछा। सलमा को तुम्हारे कमरे में आबाद किया जाता। यहाँ एक तुम ही फालतू औरत हो। वो एक अनहोनी सी बात थी। सलमा का मसला तय हो चुका था, मगर बात सुल्तान शाह ने कही थी, इसलिए वीरा का चटकना जरूरी था। वो बिला तवक्कुफ बोली, यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, गजाला भी इसी घर में रहती है। वो शौहर वाली है, डैनी के साथ रहती है। तुम अपने डबल बल्कि किंग साइज बेड पर अकेली सोती हो। सलमा के लिए तुम्हारा ही कमरा मौजू रहता। इन दोनों की बहस आगे बढ़ने के आसार वाजे थे। मैंने सख्ती से मुदाखलत करके दोनों को खामोश कर दिया। तुमको जरा भी एहसास नहीं है कि वो छत के नीचे हमारी मेहमान है? इसे तुम दोनों की इन वाहियात बातों की भनक में मिल गई तो वो किस कदर आजुर्दा होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जहांगीर की बाजियाबी के लिए फौरी तौर पर क्या किया जाए। अव्वल खान ने बाएं हाथ से अपनी पेशानी मसलते हुए कहा, फिलहाल इंतजार के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। मैं संजीदगी से सोच रहा हूं कि जख्म के निशान वाले की तलाश में शहर के बदनाम इलाकों का चक्कर लगाऊं। शायद वहां से इसका कोई सुराग मिल सके। मैंने शिकस्त खोरदा अंदाज में जवाब दिया। ज़ेरे ज़मीन दुनिया में वो अपने चेहरे के निशान की वजह से आसानी से पहचाना जाता होगा। कोफ्त और वक्त की बर्बादी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अव्वल खान बोला, तुम जानते हो कि मुजरिमों की बरादरी में बहुत एका होता है। वो आसानी से एक दूसरे के खिलाफ जुबान नहीं खोलते। मैं जहांगीर के लिए हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूं। तुम जज्बाती हो रहे हो। अव्वल खान ने नासियाना अंदाज में मुझे समझाया। तुम किसी एक आदमी को ताड़ कर अपने तशद्दुद का निशाना बनाओगे। तुम्हें आखिर तक अंदाजा नहीं हो सकेगा कि वो तुम्हारे मतलूब आदमी से वाकई लाइल्म है या जानबूझकर झूठ बोल रहा है। मेरा यह मतलब नहीं था कि हम सब सिर से कफन बांध कर इसी वक्त जहांगीर की तलाश में निकल खड़े हों। हमें जल्द अज जल्द इस वारदात का कोई सिरा तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों ना सोबराज को टटोला जाए? वीरा ने तजवीज़ पेश की। उसका मशवरा बहुत साहिब था। स्याह अकाड़ की वापसी के मरहले पर सोबराज की बदनीयती खुलकर मेरे सामने आ चुकी थी। वो मुंह पर मेरी दोस्ती का दम भर रहा था, लेकिन मेरी तरफ से अपने दिल में कीना लिए बैठा था। उसकी कोशिश थी कि वो किसी तरह मेरा काम तमाम करके अपने अमरीकी आकाओं की खुशनुदी हासिल कर ले, ताकि उसे सुकून से अपनी बकिया जिंदगी गुजारने का हक मिल सके। यह और बात थी कि उसने फ़ोन पर भरपूर मुआफ़कत का मुजाहरा करके एक मरतबा फिर मेरी खैर ख्वाही के दावे किए थे। उसे यह अंदाज़ा नहीं हो सका था कि मैं उससे बज़ाते खुद मिला था। वो मुझे मेरा भेजा हुआ कोई हरीस आदमी तसव्वुर कर रहा था। पाकिस्तान के कानून से उसे इसी वक्त तक खतरा लाहक था जब तक वो पाकिस्तान में रह रहा था। पाकिस्तान से किसी और मुल्क में जाने के बाद उसे इस खतरे से निजात मिल सकती थी, लेकिन अमेरिकी CIA वालों से उसे दुनिया के किसी गोशे में अमान नहीं मिल सकती थी। शायद वो पाकिस्तान छोड़ने से पहले मुझे ख़त्म करके अपने अमेरिकी दुश्मनों की खुशनुदी हासिल करने का फैसला कर चुका था। एक अधूरी और नाकाम कोशिश के बाद अगर उसने किसी को जहांगीर के पीछे लगा दिया था तो ये कोई ताज्जुब खेज बात नहीं थी। कुछ ना करने से बेहतर है कि सोबराज को देख लिया जाए। मेरी सवालिया नजरें अपने चेहरे पर मरकूज पाकर अव्वल खान ने वीरा की तायद की। मैंने वक्फे से 3 मरतबा सोबराज का सेटेलाइट फ़ोन नंबर मिलाया और तीनों मरतबा लाइन एंगेज मिली। मेरे दानिश में ये इम्कान नहीं था कि वो किसी से इतनी तवील गुफ्तगू कर रहा हो। मुझे सेटेलाइट फ़ोन के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि सोबराज ने इस वक्त किसी मसरूफियत के बिना पर अपना फ़ोन बंद किया हुआ था। ऐसा तो नहीं कि वो पाकिस्तान से फरार के सफ़र पर निकल खड़ा हुआ हो।
सुल्तान शाह ने अपना अंदेशा जाहिर किया। अगर वो जहांगीर के अगवा में मुलव्विस है तो ऐसा होना नामुमकिन है। मैंने वसूख से कहा। वो यहाँ रुक कर पूरे किस्से को पाया तकमील तक पहुंचाएगा, इसके बाद अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसला करेगा। यह भी तो हो सकता है कि वो इस वक्त जहांगीर से बाजपुरुष में मसरूफ हो। वीरा ने तशवीश अमेज लहजे में अपना खदशा जाहिर किया। इसके जवाब में कोई कुछ नहीं बोला। जहांगीर से पुरतशद्दुद बाजपुरुष का तसव्वुर इस कदर इंतनाक था कि हम में से कोई इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता था। यह मसला अचानक सामने आ जाने से अल्फा का मामला पसे पुश चला गया है। कुछ देर की बोझल खामोशी के बाद अव्वल खान ने झिझकते हुए जुबान खोली। पुलिस की तहवील में आने वाली अमेरिकी साख्त की ताकतवर राइफल का जिक्र सुनकर तुम चौंक गए थे। मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे दुश्मनों का दायरा बार बार फैलता और सुकड़ता जा रहा है। मैंने सोच में डूबे हुए अंदाज में जवाब दिया। तुम क्या कहना चाह रहे हो? वीरा ने मेरी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। बहुत सीधी सी बात है, कभी वो एक दूसरे से अलग नजर आते हैं और अपने अपने अंदाज में वार करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, कभी यकजा हो जाते हैं। तुमने ये नतीजा कैसे अखज़ कर लिया? अव्वल खान ने पूछा। मैंने तुमसे अमेरिकी राइफल के बारे में एक छोटा सा सवाल पूछा था। अमेरिकी राइफल के जिक्र पर मेरे जहन में एक मफरूजे ने सर उभारा था। मैंने नीची आवाज में जवाब दिया। अल्फा भी यारो मददगार था। इसका अकलौता साथी पुरस्रार तौर पर गायब हो चुका है। सोबराज ने उसकी मदद करने से पहलूतही इख्तियार की हुई है। उसे हर कीमत पर अपना मिशन मुकम्मल करना था। इसके सामने एक ही रास्ता बाकी रह गया था जो उसने इख्तियार कर लिया, अमेरिकी राइफल और एक ही रास्ता। वीरा की सोच में डूबी हुई आवाज उभरी। फिर उसने बेसाख्ता कहा, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि अल्फा ने आखिरी दर पर किस्मत आजमाई के इरादे से किसी अमरीकी से रजू किया और वो लोग उसकी मदद करने पर आमादा हो गए? मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं। मैंने उसकी तायीद की। अल्फा से अंदाजे की जरा सी गलती हो गई। सुल्तान शाह बोला। चार्ली के पकड़े जाने तक हालात कुछ और थे। अब सोबराज के दिल में बेईमानी आ गई है। हो सकता है कि अब वो अल्फा की मदद करने पर आसानी से आमादा हो जाता। वो हरगिज आमादा ना होता। सोबराज इस वक्त दोहरी चाल चल रहा है। वो एक तरफ मेरी दोस्ती का दम भर रहा है और दूसरी तरफ मेरा काम तमाम करने की फिक्र में है। इस मिशन के पेश नजर वो कोई और जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। मैंने जवाब दिया। तुमने सोबराज का जिक्र कहां से निकाल लिया? वीरा ने छिड़कर सुल्तान शाह से कहा। फिर मुझसे मुखातिब हो गई। हाँ, तो अल्फा के बारे में तुम्हारी थ्योरी क्या कहती है? इसे न सिर्फ हथियार फराहम किए गए बल्कि ये भी बता दिया गया कि आज इस्लामाबाद से कुछ अहम सरकारी शख्सियात कराची आ रही हैं। इस मामले में राजदारी से काम लिया जा रहा था। सुल्तान शाह ने मेरी बात काट कर एतराज किया। इन्हें हमारी अहम शख्सियात की नकलो हरकत की इत्तला कैसे मिल गई? सफारती हलकों के अपने जराए होते हैं। अमरीकी इन जराए से तजावुज करके जासूसी के फिराक में भी रहते हैं। प्रोग्राम पहले से तय था। जलाल की कोशिशों के नतीजे में इनकी आमद के औकात में खामोशी से तब्दीली की गई थी। अल्फा के लिए इंतजार करना मुश्किल नहीं था। अल्फा का निशाना खता हो गया, लेकिन उसका नाकाम कातलाना हमला हम सब के लिए एक खुला चैलेंज है। सुल्तान शाह बोला। शहर की सड़कों पर जब हुक्मरान महफूज नहीं है तो आम आदमी किस गिनती में? अल्फा जैसे दहशतगर्द जब चाहे शहर के हालात बिगाड़ सकते हैं। तुमने सही राय कायम की है। अल्फा को अपना मिशन पूरा करने के लिए वसाइल की जरूरत थी। वीरा बोली। अमरीकियों के पास सारे वसाइल मौजूद हैं। अफरादी कुव्वत का कहत है। दोनों ने मिलकर आज के लिए एक खूनी ड्रामे की तैयारी की थी। ये आने वाले VIP के मुकद्दर की खूबी थी कि अल्फा का निशाना कता हो गया। सिर्फ अमरीकियों का जिक्र करने से बात खत्म नहीं हो जाती। हमें यह समझना चाहिए कि अल्फा ने किससे राब्ता किया होगा। सुल्तान शाह बोला। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने रसानियत से सवाल किया। निक हार्वे अपने फ्लैट में मारा गया। गैरी हार्ट जख्मी हालत में समंदर में गर्क हो गया। अब ले दे के टाम ही रह गया है। अल्फा ने उससे कैसे राब्ता किया होगा? सुल्तान शाह का वो सवाल सही था। जरूरी नहीं कि अल्फा ने बराह रास्त टाम ही से राब्ता किया हो। वो अपनी पेशा वराना मालूमात की रोशनी में किसी भी अमरीकी एहलकार से राब्ता करता। वो तकरीबी मकासद के हसूल के लिए उसे टाम तक पहुंचा देता। टाम पाकिस्तान में CIA का नुमाइंदा था और यकीनी तौर पर FBI वालों के साथ करीबी रवाबत रखता था। यही वजह थी कि दफातर अलग अलग होने के बावजूद वो FBI के निक हार्वे के साथ एक ही फ्लैट में रहता था। निक हार्वे शेरदिल के भेजे हुए कातिल के हाथों अपने कैफर किरदार को पहुंचा तो इस वाक़े में टाम भी जख्मी हुआ था। तो उसने अपने हाथों से निक का ताबूत अपने वतन रवाना किया था। निक का जानशी गैरी हार्ट था, जिसे टाम ने जख्मी हालत में स्ट्रेचर पर ओमान के अमरीकी अस्पताल के लिए रुखसत किया था। ये गैरी की बदनसीबी थी जो पूरे जहाज और उसके मुसाफिरों को बहिराए अरब में ले डूबी थी। मकामी क़यादत की इन तब्दीलियों की वजह से FBI वालों को टाम की आनत की सख्त जरूरत थी। हालात की बिना पर इनकी पोजीशन खुद ब खुद मजबूत होती चली गई थी। गैरी के बाद अमली तौर पर वो FBI के मामलात का भी निगरान बन गया था। यूं पाकिस्तान के खिलाफ परवान चढ़ने वाली
हर अमरीकी साजिश का रोहिर रवा था। बात कहीं से भी चलती, फैसला कुन शख्सियत के तौर पर आखिरी जिम्मेदारी उसी के सर आती। इसलिए इस बात पर सर कपाना बेसूद था कि अल्फा ने टॉम से राब्ता कैसे किया होगा। पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ CIA, FBI, ड्रा और सोबराज का गठजोड़ बहुत खतरनाक था। साजिशी अफराद का वो टोला बहुत दीदा दलेरी के साथ पेशरफ्त कर रहा था। मुझे खुशी थी कि हमने अपनी कोशिशों से इस इत्तेहाद में दरारें डाल दी थी और निक यकायक सोबराज के खून का प्यासा हो गया था। मैं ख्यालात की रूह में डूबा हुआ था कि अचानक मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। राब्ता होते ही किसी तमहीद के बगैर मेरे कानों में टॉम की सर्द आवाज आई। तुम कौन बोल रहे हो? मैंने उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए सपाट बल्कि चुभते हुए लहजे में सवाल किया। कर्नल, मेरा ख्याल है कि स्पेशल टास्क फोर्स के अफसरान ज्यादा गैर मुल्कियों से मेल जोल नहीं रखते। उसकी तंजिया आवाज उभरी। ओह, तो ये तुम हो? मैंने गहरा सांस लेकर कहा। बाद सरकारी शोबों में अमरीकी और गैर मुल्की मशीर आ जाने से हमारे राब्ते बढ़ गए हैं। इस वक्त मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचान सका था। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? यह बहुत जरूरी है कर्नल, उसने जोर देकर कहा। हो सके तो इसी वक्त मेरे दफ्तर आ जाओ, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। टॉम, तुम मेरे तहफ़्फ़ुज़ात से खूब वाकिफ हो। मैं तुमसे तुम्हारे दफ्तर में नहीं मिल सकता। एडी हाक और गैरी से मेरी मुलाकातें खुले मकामात पर हुई थी, जहां कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दूसरी ओर इससे ज्यादा अहम बात यह है कि मेरी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। फिलहाल मैं मसरूफ हूं, वक्त नहीं निकाल सकता। इस वक्त मसरूफ हो तो कल सुबह मिल लो, मगर मेरे दफ्तर में ना आने वाली बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। वो बोला, यह पुरानी बात है, तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं तलवार की धार पर चल रहा हूं। मेरे बड़े ये बात पसंद नहीं करेंगे कि मैं किसी गैर मुल्की एजेंसी के मुलाजमीन से अपना मेल जोल रखूं। मुझे अपनी हिफाजत का ख्याल भी रखना पड़ता है। पता नहीं ये खौफ तुम्हारे दिल से क्यों नहीं निकलता? हम लोग तुम्हें खा नहीं जाएंगे, उसने मेरी बात काट कर कहा। कोई किसी को नहीं खाता, जद पर आ जाए तो बस जरा सा मरवा देता है। निक और गैरी दोनों मर चुके हैं, लेकिन वो कभी ये बात वाज़ेह नहीं कर सके कि वो मुझसे दोस्ती रखना चाहते हैं या मुझे ब्लैकमेल करने का इरादा रखते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं ऐसी गलतफहमियों को दूर कर सकूं। तुमसे कई बार मेरा आमना सामना हुआ है। तुमने देखा होगा कि मैं दूसरों के मामलात में अपनी टांग नहीं अड़ाता, सर झुकाकर अपने काम से काम रखता हूं। सच्ची बात यह है कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी सोचने की कोशिश नहीं की। जिन लोगों के बारे में गौर किया, इन्हें अपनी मेज़ान पर पूरा नहीं पाया। मैंने इस बार भी उसकी अहमियत घटाने के मौका से फायदा उठा लिया। मिलते रहोगे तो मेरी तरफ से तुम्हारा जहन साफ हो जाएगा। मैं दोस्त बनाता हूँ या दुश्मन, बीच का रास्ता मुझे पसंद नहीं है। ये बताओ कि कल किस वक्त और कहाँ मिल रहे हो? उसने मेरी बात का बुरा मनाए बगैर सवाल किया। दोस्ती और दुश्मनी का असूल तुम्हारे पेशे से मेल नहीं खाता। इसमें मुनाफिकत और धोखेबाजी से बड़ी कामयाबियां हासिल होती हैं। तुम भी किसी हद तक मेरे हम पेशा हो। इन बातों को छोड़ दो, ये बहुत दूर निकल जाएंगी। मुझे मुलाकात के बारे में बताओ। वो मेरी बात टाल कर अपने सवाल पर अड़ा रहा। तुम शहर में रूनमा होने वाले बदतरीन वाकयात से बेखबर तो नहीं हो? क्या मैंने पूछा। अहम वाकयात से बाखबर रहना मेरे फ़राइज़ में दाखिल है। तुम किस वाक़े का जिक्र कर रहे हो? आज शहर में दो अहम वाकयात ने जन्म लिया है। एक नाकाम कातलाना हमला और दूसरा एक डॉक्टर का कत्ल। तुम्हारी सरकार को डॉक्टर के कातिल का पता है और न कातलाना हमला करने वाले का। डॉक्टर सादिक के बारे में तुम क्या जानते हो? मैंने अचानक पूछ लिया।